आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। टैलेंट के बगैर कोई भी सियासत में सबकत नहीं ले जा सकता। अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर KTR का खिताब। किसानों की बहबूद हुकूमत का मिशन, धान की खरीदारी मरकज की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना जब्त। दुबई से हैदराबाद पहुंचे 2 मुसाफिरीन से 3 करोड़ मालियती सोना किया गया जब्त। जामे तरक्की ही हमारा ख्याल, आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने में कुलीदी किरदार अदा करेगा। आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। नायब सदर जगदीश धनखड़ का हिंद आसियान के दरमियान स्ट्रैटेजिक एतमाद के ताउन को बढ़ाने पर जोर, कहा एशिया पैसिफिक खिते में आसियान के मरकजी रूल की हिंदुस्तान करता है हिमायत। पाक आर्मी चीफ की तकर्रुरी आइन के मुताबिक होगी, पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT और बल्दी नज़्म नफ्स के तारक रामाराव ने कहा कि टैलेंट के बगैर कोई भी सियासत में सबकत नहीं ले जा सकता। मुल्क के अवाम ने इंदिरा गांधी जैसे अजीम लीडरों को शिकस्त दी। उन्होंने खुद अपना हवाला देते हुए कहा कि पहला इलेक्शन बहुत मुश्किल से उन्होंने जीता था और फिर अपनी कारकर्दगी से सिलसिला हल्के में बतदरीज अपनी अक्सरियत बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। तारक रामाराव ने हैदराबाद की अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जद्दोजहद आज़ादी और तेलंगाना तहरीक में अखबारात ने अहम रोल अदा किया। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना तहरीक के दिनों में प्रेस मालिकान तेलंगाना और TRS के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि सहाफत की आड़ में आज भी जाती तौहीन और गपशप की जा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना के सहाफियों ने दिल्ली आकर तेलंगाना की लड़ाई लड़ी। वज़ीर आला ने सहाफियों की अहमियत को कभी कम नहीं किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसने सहाफियों की बहबूद के लिए फंड्स मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में एग्रेडेशन कार्ड रखने वाले 19,000 सहाफी हैं। ఇంకొకరు డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి రావచ్చు, ఇంకో రకంగా రావచ్చు, ఇంకో రకంగా రావచ్చు. రావడానికి ఒక మాధ్యమంగా, ఒక సాధనంగా, ఒక ఎంట్రీ పాస్లా మీరు ఎవరు అనేది ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఎవరు, ఫలానా వారి కొడుక, కూతుర, లేకపోతే ఒక బిజినెస్లో బాగా డబ్బులు సంపాదించి వచ్చారా, లేదా ఒక మంచి పేరు సంపాదించుకొని వచ్చారా, ఎంట్రీ పాస్ కింద ఉపయోగపడుతుంది మొదటి ఎన్నిక కాడికి. ఆ తర్వాత మాత్రం మీకు అది ఉపయోగపడదు. ఇట్స్ వన్ టైం కార్డు, అది ఒకసారి మాత్రమే వాడుకునే కార్డు. ఆ తర్వాత రెండోసారి ఉపయోగపడదు. మీరు ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా, మీ పాటికి మీ మనసులో మీరు చాలా పెద్ద నాయకుడిని ఊహించుకున్నా ఉపయోగపడదు, దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో మనం చూసినాం, ఇందిరాగాంధీ గారిని కూడా ప్రజలు ఓడించారు, NT రామారావు గారిని ఓడించారు. వాళ్ళకంటే గొప్ప వాళ్ళు మేము ఎవరం కూడా కాదు పాపులారిటీలో. కాబట్టి కేవలం ఎంట్రీ పాస్గా మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి తప్ప ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ. ఆ తర్వాత మాత్రం మన సమర్థత, మనకు పని వస్తుందా రాదా, అసలు మనం పనికి వస్తామా రామా ప్రజలకి, దీన్ని బట్టే ప్రజలు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు తప్ప ఇంకో రకంగా మాత్రం ఆలోచించరు. కాబట్టి తెల్లారు లేస్తే వారసత్వ రాజకీయం అని మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చెప్పేది ఏమంటే, మాకుండే బాధలు మాకుంటాయి, కాకపోతే కేవలం ఎంట్రీ పాస్ మాత్రమే. వారసత్వం అనేది ఎంట్రీ పాస్ తప్ప ఆ తర్వాత మాత్రం ఉపయోగపడదు. ఇప్పుడు నేను 4 ఎలక్షన్లు కొట్లాడి 4 ఎలక్షన్లు గెలిచాను సిరిసిల్లలో. మొదటి ఎన్నికల్లో నేను సావు తప్పి కన్నులొట్టపోయినట్టు 170 కోట్లతో గెలిచిన, తర్వాత 54,000 ఓట్లతో గెలిచాను, ఆ తర్వాత 68,000 ఓట్లతో గెలిచాను, మొన్నటి ఎన్నికల్లో 89,000 ఓట్లతో గెలిచాను. అంటే నేను పనికిరాను అని సిరిసిల్ల ప్రజలు అనుకుంటే నన్ను వరుసగా గెలిపించారు, నా మెజారిటీ పెరగదు కదా. పనికిరాను అనుకుంటే ఈ దేశంలో గొప్ప గొప్ప మహామహులు అనుకున్న వాళ్ళనే చెత్తబుట్టలో పాడేసే చైతన్యం ఈ దేశంలో ప్రజలకు ఉంది. కాబట్టి నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే, మీ అందరితో కూడా, ఆల్దో పాలిటిక్స్ అండ్ పాలిటీషియన్స్ అండ్ మీడియా పర్స్పెక్టివ్లో చాలా గ్లామరస్ కనిపించిన, మాకుండే బాధలు, మాకుండే కష్టాలు మాకుంటాయి. సీత కష్టాలు సీతయి, పీత కష్టాలు పీతయి అన్నట్టు ఎవరి కష్టాలు వారివి. అయినప్పటికీ మరి ఈరోజు గంటా చక్రపాణి గారు, అల్లనారాయణ గారు, సీతారామరావు గారు,
తెలంగాణ ఉద్యమంలో పత్రికా మాధ్యమాల ప్రసార సాధనాల పాత్ర, ప్రస్తుతం తెలంగాణలో నెలకొని ఉన్న పరిస్థితులని చెప్పి వారు అడిగారు. ఈరోజు ఈ 2 రోజుల ఈ కాన్ఫరెన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసినందుకు ముందుగా వారికి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు. తెలంగాణలో ఇప్పుడే వెంకటనారాయణ గారు అన్నారు, నేను గతంలోకి తొంగి చూస్తే మరి ఇక్కడ మీడియా ఏంటనేది నేను గొప్పగా గుర్తించలేకపోయాను అన్నారు. సరే, మీడియా కంటే కూడా ఎక్కువగా నన్ను అడిగితే మీడియా యాజమాన్యం కంటే కూడా పత్రిక యాజమాన్యం కంటే కూడా మీడియాలో పనిచేసిన కలంవీరులు ఎవరైతున్నారో, జర్నలిస్టులు ఎవరైతున్నారో వారి పోరాట స్ఫూర్తి తెలంగాణలో మొదటి నుంచి కూడా చాలా గొప్పది సార్. ఆనాడు హైదరాబాద్ సంస్థానంలో, హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన వాళ్ళల్లో అగ్రగణ్యుడు ఆనాటి మరి కలంవీరుల్లో, జర్నలిస్టుల్లో షోయబుల్లా ఖాన్ గారు. షోయబుల్లా ఖాన్ ఈరోజు ట్యాంక్ బండ్ మీద కూడా వారి విగ్రహం ఉంది. వారిని గుర్తుంచుకుంటూ ఉంటాం, గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఆనాడు నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో ఎంతోమంది జంకిన నాడు కూడా ఆయన జంకకుండా ఒక నిరంకుశ నిజాం పాలన. वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा कि किसानों की बहबूद हुकूमत का मिशन है। उन्होंने कहा कि रैतु बीमा, रैतु बंधु, कालेश्वरम प्रोजेक्ट और जरिए मकासद के लिए 24 घंटे बिजली मुल्क के लिए मिसाली है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत में ही तेलंगाना तरक्की करेगा। वजीर एराबली दयाकर राव ने वरंगल जिले के रायपर्ती में धान की खरीदारी के मरकज का इफ्तिताह किया। वादजा उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत में धान की खरीदारी नहीं कर पा रही है और सरहद पार सियासत कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या रियासत में जिन स्कीमात पर अमल किया जा रहा है ऐसी स्कीमात बीजेपी और कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में कहीं भी मौजूद है। अपोजिशन को तनकीद करने से पहले खुद का मुहासिबा करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल मुनक्किद होने वाले मुजव्विदा दौरा रामागुंडम जिला पेद्दापल्ली की शदीद मुखालिफत करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हल्के हुस्नाबाद कमेटी की जानिब से कामरेड जी मल्लेश रियासती कमेटी रुकन की क़ियादत में मुकामी कुल जमाती कायदीन ने इस दौरे की शदीद मुखालिफत की। सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, वी वेंकटराम रेड्डी, कांग्रेस कायद के लिंगम मूर्ति, तेलुगुदेशम कायद श्रीनिवास और दूसरों ने कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम के दौरे को मजहक खेज करार दिया और कहा कि रामागुंडम में मौजूद फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की फैक्ट्री का हया हुए और पैदावार का आगाज हुए 3 साल का अर्सा गुजर चुका है। अब वजीर आजम की जानिब से फैक्ट्री का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देने का ऐलान महज मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत के माबैन टकराव और तनाव पैदा करने कोशिश का हिस्सा है। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर सदर टाउन कमेटी हुस्नाबाद ने अपने खिताब में इस बात का दावा किया कि रियासत तेलंगाना के कुल जमाती कायदीन और अवाम सियासी वाबस्तगी से बातर होकर रियासती हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपना दौरा तेलंगाना और रामागुंडम फौरी मनसूख कर देने का पुरजोर मुतालबा किया। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना जब्त किया गया। दुबई से हैदराबाद पहुंचे 2 मुसाफिरीन के पास से जब्त इस जरधात की मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है, जो पेस्ट की शक्ल में लाया गया था। कस्टम के उहदेदारों ने शुबे की बुनियाद पर इन 2 मुसाफिरीन को रोककर तलाशी ली, जिस पर इस सोने का पता चला। इन मुसाफिरीन से पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसी की ईमा पर ये सोना लाया गया। वाज़ेह है कि जुनूबी हिंद की बड़े एयरपोर्ट्स में से एक शमशाबाद एयरपोर्ट पर हालिया दिनों के दौरान सोने की स्मगलिंग की कोशिश के वाकयात में इजाफा हुआ है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने हफ्ते को हिंदुस्तान और जुनूब मशरक़ी एशियाई मुल्क की तंजीम के दरमियान स्ट्रैटेजिक एतमाद और ताउन को मजीद गहरा और वसअत देने पर जोर देते हुए कहा कि एशिया पैसिफिक खिते में आसियान के मरकजी रोल की हिंदुस्तान हिमायत करता है। धनखड़ यहाँ हिंद आसियान 19वीं चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी मौजूद थे। इस चोटी कॉन्फ्रेंस को हिंद आसियान ताल्लुकात के 30 साल की यादगारी समिट के तौर पर देखा जा रहा है। इसका इनेकाद आसियान के 40 और 41 चोटी कॉन्फ्रेंस के साथ किया जा रहा है। धनखड़ की क़ियादत में हिंदुस्तानी वफ़द मीटिंग में शिरकत के लिए कल यहां पहुंचा था। धनखड़ ने कहा, हम मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं तो इस खिते का सियासी मंजरनामा यकीनी नजर आता है। हम इस पर आंखें बंद नहीं रख सकते। इस सूरत हाल से निकलने के लिए हिंद आसियान ताउन को वसअत देना चाहिए, स्ट्रैटेजिक एतमाद को गहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंद आसियान ताउन को वसअत देना चाहिए, स्ट्रैटेजिक एतमाद को गहरा करना चाहिए। इस सिलसिले में हिंद आसियान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रोल की अहमियत और बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जामे तरक्की ही हमारा ख्याल है और हम बुनियादी ढांचे के साथ जदीद हिंदुस्तान का इख्तिरा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने में कुलीदी रोल अदा करेगा, क्योंकि साहिल हमारी खुशहाली का निशान
बन चुके हैं। आंध्र प्रदेश के लोग पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। यहाँ के लोग तिब, कारोबार और टेक्नोलॉजी के शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश में तकरीबन 15,233 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्ट्स का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने आंध्रा इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में मुनक्किदा तकरीब से खिताब किया। मोदी ने अपनी तकरीर का आगाज तेलुगु जबान से किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि विशाखापट्टनम दिफा, कारोबार और सनती शोबों में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तकनीकी शोबों में आंध्र प्रदेश की खुसूसी पहचान है। आज शुरू करदा प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश के लोगों की तरक्की के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों के जरिए हजारों करोड़ का कारोबार होता है। विशाखा हर बार की तरक्की से आवाम की जिंदगियों में तब्दीली आएगी। आंध्र प्रदेश मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। हमारी हुकूमत बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए हमेशा इकदाम कर रही है। यह कहते हुए कि विशाखापट्टनम हिंदुस्तान के लिए एक मुनफरिद शहर है, उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम में कदीम हिंदुस्तान की एक मशहूर बंदरगाह है। विशाखापट्टनम एक तिजारती मरकज के तौर पर परवान चढ़ा है। हजारों साल पहले विशाखापट्टनम से रोम तक तिजारत होती थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि तेलुगु रियासत रेलवे, सड़कों और बंदरगाहों की तरक्की में आगे है। मरकज ने मिशन गति शक्ति के तहत प्रोजेक्टों की रफ्तार में इजाफा किया है। दुनिया के तमाम ममालिक हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। हमारा बुनियादी मकसद आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना है। मोदी ने आंध्र यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड से 15,233 करोड़ रुपए मालियत के 9 प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल तरीकेकार के जरिए आगाज किया और तख्ती की नकाब कुशाई की। उन्होंने कौमी शाहरा 326 से 39 किलोमीटर नरसन्नापेट पातापट्टनम सेक्शन को कौम के नाम मानून किया। हिमाचल प्रदेश 68 रुकनी कानून साज असेंबली के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, जिसमें 55,92,828 वोटर इंतखाबी मैदान में 24 खवातीन समेत 412 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुबह से ही वोटरों का घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशनों की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी और इसी दिन नताइज का ऐलान किया जाएगा। रियासत के जुमला वोटर में 67,559 सर्विस वोटर, 22 बैरून मुल्क हिंदुस्तानी वोटर और 55,25,247 आम वोटर है। रियासत में खवातीन वोटर्स की तादाद मर्दों से ज्यादा है। इनमें से 28,54,945 खवातीन, 27,37,845 मर्द और 38 तीसरी सिंफ के वोटर्स हैं। बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी वोटर्स जिनके नाम आवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल हैं, उनके लिए वोटिंग के लिए अपना असली पासपोर्ट दिखाना लाजमी है। रियासत में 7,821 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 7,235 दही और 646 शहरी इलाकों में है। इसके अलावा 3 माविन पोलिंग स्टेशन सतबाड़ी, बड़ा बंगल और ढलवान में बनाए गए हैं। रियासत के 157 पोलिंग स्टेशनों पर सिर्फ खवातीन कारकुनान तैनात की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को हिमाचल प्रदेश के वोटरों से जमहूरियत के त्यौहार में पूरे जोश खरोश के साथ हिस्सा लेने की अपील की। मोदी ने ट्वीट में कहा, हिमाचल प्रदेश की तमाम असेंबली सीटों के लिए पोलिंग का दिन है। मैं देवभूमि के तमाम वोटर्स से पूरे जोश खरोश के साथ जमहूरियत के त्यौहार में हिस्सा लेने और नया रिकॉर्ड बनाने की गुजारिश करता हूं। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने तमाम लोगों से हिमाचल प्रदेश की खुशहाली के लिए कानून साज असेंबली के वोटिंग में जोश व खरोश से हिस्सा लेने की अपील की। गांधी ने ट्वीट किया, हिमाचल वोट देगा, पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस के लिए, हिमाचल रोजगार के लिए वोट देगा, हिमाचल हर घर लक्ष्मी के लिए वोट देगा। लोगों से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, आइए बड़ी तादाद में वोट दीजिए और हिमाचल की तरक्की और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए अपना अहम ताउन दीजिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि मध्य प्रदेश में 17 यात्राएं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। सिंह ने ट्वीट करके बताया कि रियासत के हर इलाके, हर अजला से यात्रा शुरू होकर करीब तरीन जिले की हद तक जा रही है। वहां पहुंचकर वह आइन की कॉपी और कौमी परचम इस जिले की यात्रा में शामिल लोगों के हवाले कर रही है। इस तरह 17 यात्रा हर इलाके से गुजरेंगी और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। गांधी की यात्रा आइंदा 20 तारीख को जिले बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में दाखिल होगी। इससे पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर इस यात्रा की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। शाहरुख खान को यूएई में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है। शाहरुख खान को यह अवार्ड सिनेमा में उनकी खिदमत और आलमी आइकॉन के तौर पर दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सुर्खियों में है, जिसमें शाहरुख अपनी फातिह तकरीर देते नजर आ रहे हैं। अपनी तकरीर में शाहरुख ने कहा, चाहे हम कहीं भी रहें, हम किस रंग के हैं, हम किस मजहब से हैं या हम किसी गाने पर रक्स करते हैं, हर सकाफत में प्यार, अमन और हमदर्दी होती है।
गुजरात में मोरबी पुल के अचानक गिरने से 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं, जिसके बाद पूरे मुल्क में हर सियासी पार्टी के लीडरों समेत तमाम ताकतों ने शोक मनाया। उस वाकये के बाद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी को हिदायत दी है रियासत के अफसरान रियासत के तमाम पुलों का मुआयना करने और उनकी हालत को बेहतर बनाने के लिए। वहीं कानपुर के देही इलाकों में रोरा रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर रेलवे की तरफ से बनाया गया आरजी पुल मौत की दावत दे रहा है। यह रेलवे लाइन जहां मौत के घाट उतार रहा है, कई मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन की शक्ल कानपुर के देही इलाकों के रोरा रेलवे स्टेशन से चंद कदम के फासले पर है। रेलवे लाइन का कुछ हिस्सा रामगंगा नहर के ऊपर से गुजरता है। हालांकि इसका फासला 35 से 40 से ज्यादा नहीं है फीट, लेकिन इस आरजी पुल को रोजाना तकरीबन 25,000 लोग अबूर करते हैं। क्योंकि ऐसी हकीकत सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरहकीकत रामगंगा नहर जिसके ऊपर से टेली लाइन गुजरती है, यह नहर 2 हिस्सों में तकसीम है और दोनों पर 20 देहातों के हजारों लोगों को ट्रैक के किनारे 2 फीट चौड़ा मुतबादिल ट्रैक करें वह लोहे की पट्टी की मदद से अपनी मंजिल मुकम्मल करते हैं। और इस आरजी पुल की मदद से कई गांव जैसे बाजूपुरवा, पूटीपुरवा, रोरा, अंबरपुर वगैरह 20 ऐसे गांव इस परेशानी से मुतासिर हैं। लेकिन यह सफर कितना पुरखतर है, ये शायद सिर्फ वही लोग हैं आप जानते हैं कि कौन उसे रोजाना पार करता है, या आप जो अब इस पुल पर चलते हुए जिंदगी को देख रहे हैं। मौत के इस सफर को अबूर करने वाले तमाम लोगों ने इस सफर का खतरा बताया। जब हमने इस बारे में लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो तकरीबन 30 साल से इस तरह का आना जाना जानते हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर पहुंचना है। इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है और जो सड़क इस गैर इरादी गांव से मुंसलिक है वो 1 किलोमीटर दूर बनाई गई है, जिस पर चलने में उन लोगों का काफी वक्त जाया हो जाता है। अगर आवाम की बात मानी जाए तो लोग अपने बच्चों को यहां से ले जाते हैं। समाजवादी पार्टी रुकने से बोली इरफान सोलंकी की अहलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आग आतिशबाजी की वजह से लगी, बच्चों के आतिशबाजी के बाद झोंपड़ी में आग लगी। केस में शौहर ने बेगुनाह बताया। सीसीटीवी फुटेज जारी, 6 मिनट की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए शौहर को बेकसूर बताया। योगी जी से गुजारिश है कि मामले की सही जांच करवाएं। कानपुर के गोविंदनगर के रहने वाले रोशन अरोड़ा और अमले के दीगर अरकान को बचाने के लिए आम लोग सड़क पर आ गए। गोविंदनगर के रिहायशी रोशन के घर से चावला चौराहे तक एमएलए ने आम लोगों के साथ प्ले कार्ड बैनर लेकर पैदल मार्च किया। रिश्तेदारों ने पीएम मोदी से दरखास्त की कि वो नाइजीरिया से तमाम हिंदुस्तानियों को वापस लाने का मुतालबा करें। हुकूमत हिंद से तमाम हिंदुस्तानियों को बहिफाजत वापस लाने का मुतालबा किया गया। 90 रोज कबल नेवी ने गनी मुल्क की समुद्री सरहद से मर्चेंट नेवी के जहाज को पकड़ा था। गनी आर्मी ने अमले के तमाम अरकान को नाइजीरियन नेवी के हवाले कर दिया। गनी की फौज ने तेल चोरी के इल्जाम में मर्चेंट नेवी के जहाज के अमले के रुकन को गिरफ्तार किया है। थाना बुधनों के तहत न्यू आजाद नगर पुलिस चौकी में गुज़िश्ता रात चोरों ने चोरी की वारदात अंजाम दी। सरकारी पिस्तौल, 2 कारतूस, 2 मोबाइल समेत कपड़े का डिब्बा चोरी कर लिया गया। चोरीशुदा संदूक पुलिस चौकी से कुछ फासले से बरामद हुआ। चोरों ने बड़ी फुर्सत से सीने में रखे कपड़े और सरकारी कागजात जलाए फिर फरार हो गए। सुबह इत्तला मिलती ही आला हुक्काम फ्रांसिक टीम जल्दबाजी में पहुंच गई। पुलिस करीबी इलाके से सीसीटीवी फुटेज स्कैन कर रही है। वाकये के वक्त चौकी इंचार्ज सुधाकर पांडे चौकी पर मौजूद थे, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। टैंक के अंदर खारिज होने वाली जहरीली गैस से 3 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि टैंक साफ करने के लिए नीचे आने वाली जहरीली गैस से 3 मजदूर बेहोश हो गए। हेलेट अस्पताल में डॉक्टरों ने तीनों को मुर्दा करार दिया। हालात में आने वाला शख्स लाश इमरजेंसी में छोड़कर फरार हो गया। देर रात जाजमाऊ के शालीमार टेनरी का वाकया। पीडीपी सदर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक कठपुतली है और इसी पार्टी के इशारे पर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के रिक़्क़ात का ऐलान करेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ वोट बटोरने के लिए कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द का इस्तेमाल करती है, वरना इस पार्टी को किसी की कोई फिक्र नहीं है। उनका कहना था कि कश्मीरी पंडित पिछले कई माह से जम्मू में एहतजाज कर रहे हैं, तो कभी उनकी तनख्वाह बंद की जाती है तो कभी राशन बंद किया जाता है। साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार हफ्ते को जनूबी कश्मीर के बजवाड़ा इलाके में नामनिगारों के सवालों का जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने हर चीज को उलट पलट करके रख दिया है। हमारे कश्मीरी पंडित पिछले कई माह से जम्मू में दरबदर हैं, कभी उनकी तनख्वाह बंद की जाती है तो कभी उनका राशन बंद किया जाता है। उत्तराखंड के पथुरागढ़ में जुमा की देर रात एक गाड़ी के खाई में गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई।
रात चांडक इलाके में वरदानी माता मंदिर के करीब स्कॉर्पियो गाड़ी हादसे का शिकार होने के बाद खाई में गिर गई। इत्तला मिलते ही एसडीआरएफ और पथुरागढ़ पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंची और नाश को खाई से बाहर निकाला। मुतवफी की शनाख्त भोनगंजियाल के रहने वाले तलडोंगरी पथुरगढ़ के तौर पर की गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने पथुरागढ़ का दौरा करने से पहले भवन गंजियाल की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए फोन पर लवाकीन से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि आर्मी चीफ की तकरीरी आईनी मामला है, आइन के मुताबिक तय होगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से चौथी मुलाकात हुई। दोनों भाइयों की मुलाकात में मरियम नवाज भी शरीक थी। मुलाकात से वापसी पर शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तकरीरी आईनी मामला है, आइन के मुताबिक तय होगा। गुज़िश्ता रोज भी शहबाज शरीफ ने हसन नवाज के दफ्तर में बड़े भाई से 4 घंटे तवील बैठक लगाई थी, जिसमें मुल्क की सियासत समेत कई अहम मामलात पर मुशावरत थी। गुज़िश्ता 2 दिन में अब तक 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी रहनुमाओं को नवाज शरीफ से मुलाकातों पर एतमाद मिलेंगे, जिसके लिए आइंदा हफ्ते इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास बुलाया जाएगा। याद रहे कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक की थी कि लंदन में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तकरीर पर मुशावरत जरूर हुई, लेकिन आर्मी चीफ का फैसला आईनी अमल के आगाज के बाद मुशावरत से होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हफ्ते को म्यांमार में रोहिंग्या बरादरी के इंसानी हुकूक की बहाली पर जोर दिया। गुटेरेस ने सहाफियों से कहा कि मैं आसियान म्यांमार में इंसानी हुकूक की खौफनाक सूरत हाल की मजम्मत करता हूं और मुल्क के हुक्काम से तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने और जमहूरी मुंतखली की तरफ वापसी का अमल शुरू करने के लिए अपने मुतालबा का अदा करता हूं। मैंने ममालिक पर भी जोर दिया कि पनाह गजीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इलाकाई फ्रेमवर्क तैयार करें। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में आसियान के साथ मिलकर काम कर रहा है और दुनिया इस मकसद के लिए आसियान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने यूक्रेन से अनाज की आजाद गुजरगाह की जरूरत के बारे में भी बताया। अपनी प्रेजेंटेशन में गुटेरेस ने आबोहवा की तब्दीली से लड़ने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि समंदरी खिते के बहुत से ममालिक आबोहवा की तब्दीली से बुरी तरह मुतासिर हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लेहान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने फोन पर बातचीत में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने अपनी वेबसाइट पर यह इत्तला दी। ईरान की एटमी तवानाई की तंजीम और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के दरमियान तकनीकी बातचीत पर तबसरा करते हुए अब्दुल्लेहान ने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान काफी ताउन हुआ है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के हवाले से ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता पैगामात के हालिया तबादले की खबर दी, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तरका जामे एक्शन प्लान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने यमन में जंगबंदी के लिए कोशिश जारी रखने पर जोर दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। टैलेंट के बगैर कोई भी सियासत में सबकत नहीं ले जा सकता। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। किसानों की बहबूद ही हुकूमत का मिशन है। धान की खरीदारी मरकज की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना जब्त। दुबई से हैदराबाद पहुंचे 2 मुसाफिरीन के कब्जे से 3 करोड़ मालियाती सोना किया गया जब्त। जामे तरक्की ही हमारा ख्याल। आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने में कुलीदी किरदार अदा करेगा। आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम का खिताब। नायब सदर जमहूरिया जगदीश धनखड़ का हिंद आसियान के दरमियान स्ट्रैटेजिक एतमाद के ताउन को बढ़ावा देने पर जोर। कहा एशिया पैसिफिक खिते में आसियान के मरकजी रूल की हिंदुस्तान करता है हिमायत। और पाक आर्मी चीफ की तकरीरी आइन के मुताबिक होगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।